دنیا کے نقشے میں یہاں پر موجود ہے وہ لٹل سینٹ جیمز نام کا بدنام ٹاپو کہ جس نے پچھلے کچھ مہینوں سے پوری کی پوری دنیا میں ایک ہنگامہ مچا رکھا ہے، کیونکہ یہی وہ خاص ٹاپو ہے کہ جس کو عام لوگوں کی طرف سے ایپسٹین آئی لینڈ کہا جاتا ہے، اور اسی آئی لینڈ، اسی ٹاپو کے اوپر ہی دنیا کے وہ حد سے زیادہ گھنونے، گندے اور خطرناک کام ہوئے ہیں کہ جن کو شرم کی وجہ سے نہ تو یہاں پر پوری طریقے سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی آپ لوگ اس کو سننے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ سمندر کے بیچ میں موجود اس سنسان ٹاپو کے اوپر کئی سالوں تک جو کچھ بھی ہوتا رہا تھا اس کو انجام دینے والے دنیا کے کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ تو دنیا کے امیر سے امیر اور مشہور سے مشہور لوگ تھے۔ کوئی نیتا تھا تو کوئی رائل فیملی سے جڑا ہوا بندہ تھا، کوئی بزنس مین تھا تو کوئی کسی دوسرے فیلڈ کا مشہور انسان تھا۔ اب اگر آپ لوگوں کو اس آئی لینڈ اور اس کا جو مالک ہوا کرتا تھا مطلب کہ جیفری ایپسٹین، اس کی حقیقت کو جاننا ہے، ساتھ ہی یہ بھی جاننا ہے کہ آخر ایپسٹین فائل کے نئے ریلیز ہونے والے ڈاکیومنٹس میں انڈیا کے پرائم منسٹر کا کیا اینگل دکھایا گیا ہے، تو ہم کو اس پوری کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرنا پڑے گا۔ یہ بات ہے 1953 کی کہ جب امریکہ کے اندر جیفری ایپسٹین نام کے اس انسان کا جنم ہوا تھا۔ اس بندے نے اپنے کریئر کی شروعات ایک معمولی اسکول ٹیچر کے طور پر کی تھی۔ اس کے بعد یہ وال اسٹریٹ پہنچا جہاں پر اس نے امیر لوگوں کے پیسوں کو مینج کرنا شروع کیا، یہی اس کی قابلیت تھی، اور پھر اس نے اپنی خود کی کمپنی کھولی اور اس کے بعد امیر سے امیر لوگوں سے رشتے بنانے شروع کیے اور ان کے قریب آتا چلا گیا۔ بڑے اور اثردار لوگوں سے کنیکشن بنانے میں یہ انسان کتنا زیادہ ماہر تھا، اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے جن لوگوں سے کنیکشن بنائے ان میں دنیا کے مشہور بزنس مین، بڑے بڑے پروفیسرز، سائنٹسٹ اور اس کے علاوہ دیشوں کے پردھان منتری اور راشٹرپتی تک شامل تھے۔ اب ویسے تو یہ چیز بھی اپنے آپ میں آج تک ایک پہلی ہی ہے کہ آخر جیفری ایپسٹین اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ امیر کیسے بن گیا تھا۔ آخر اس نے اتنی آسانی کے ساتھ اتنے کم وقت میں اتنا بڑا ایمپائر کیسے کھڑا کر لیا تھا؟ جیسے بھی کیا ہو لیکن کر تو لیا ہی تھا، اور پھر اسی ایمپائر کے ذریعے سے اس نے دنیا کے امیر، طاقتور اور اثردار لوگوں سے کنیکشن بنائے تھے۔ اور اسی کے بعد ہی ہماری اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے اس ٹاپو کی کہ جس کا ذکر بالکل شروع میں کیا گیا تھا، جی ہاں، جو جیفری ایپسٹین کا اپنا پرائیویٹ آئی لینڈ تھا۔ جیفری ایپسٹین کا یہ آئی لینڈ مانو تسکری، نابالغ بچیوں کے یون شوشن اور یون اپرادھوں کا ایک اڈا ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے باقی علاقوں سے چھوٹی اور بہت کم عمر بچیوں کو بہلا پھسلا کر یا باقی طریقوں کا استعمال کر کے اس آئی لینڈ پر لایا جاتا تھا، اور پھر یہاں پر لا کر زبردستی یا پھر دوسرے طریقوں کا استعمال کر کے ان کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جاتا تھا کہ جو یہاں پر ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی امیر، اثردار اور طاقتور لوگ تھے کہ جو جیفری ایپسٹین کے کنیکشن میں تھے یا اس کے دوست ہوا کرتے تھے یا اس سے کلوز ہوا کرتے تھے، وہ وقت وقت پر جیفری ایپسٹین کے اس آئی لینڈ پر جایا کرتے تھے۔ کبھی تو ایپسٹین کی طرف سے ان لوگوں کو پارٹیز میں انوائٹ کیا جاتا تھا، تو کبھی یہ انڈیویجولی الگ الگ اپنے پرسنل ٹرپ پر بھی جایا کرتے تھے۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جب بھی دنیا کے یہ اثردار لوگ اس آئی لینڈ پر جایا کرتے تھے تو جیفری ایپسٹین خفیہ طور پر ان لوگوں کے فوٹوز یا پھر ویڈیوز لے لیا کرتا تھا۔ بعد میں انہی فوٹوز اور ویڈیوز کا استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا، اور اس دور میں لیے گئے وہ فوٹوز اور ویڈیوز ہی ہیں کہ جو کئی سالوں کے بعد مطلب 2025 اور 26 میں ایک ایک کر کے ریلیز ہو کر پوری دنیا میں ہنگامہ مچا رہے ہیں۔ اب جتنی بھی کم عمر لڑکیاں تھیں کہ جو ان تمام چیزوں کا لگاتار شکار بنی تھیں یا ان کے پیرنٹس تھے، وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جیفری ایپسٹین کے اوپر دنیا کے سب سے طاقتور اور اثردار لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اسی لیے اس انسان کے خلاف ایکشن لینا تو دور، بلکہ اگر منہ بھی کھولا گیا تو شاید ہمارا ہی انجام خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن 2005 میں اس وقت بڑا موڑ آیا کہ جب انہی چیزوں سے گزرنے والی ایک لڑکی نے ہمت کرتے ہوئے آخرکار دنیا کے سامنے منہ کھول ہی دیا۔ تب جا کر ہماری دنیا کو پہلی بار جیفری ایپسٹین کے تمام کالے کارناموں اور اس کے اس خطرناک آئی لینڈ کے بارے میں پتا چلا۔ پوری دنیا کو لگا تھا کہ اب تو جیفری ایپسٹین کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اس کے خلاف تمام ثبوت بھی ہیں، تو اسی لیے اب وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں جیل سے باہر قدم رکھ ہی نہیں سکے گا۔ لیکن تمام لوگ غلط سوچ رہے تھے، کیونکہ جیفری ایپسٹین کے اوپر دنیا کے حد سے زیادہ طاقتور اور اثردار لوگوں کا ہاتھ تھا، اسی لیے صرف اور صرف 12 سے 13 مہینے کے بعد ہی جیفری ایپسٹین ایک بار پھر سے جیل سے باہر
आ चुका था और पहले की तरह ही खुलेआम एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। ठीक 6 साल के बाद मतलब 2011 में एक बार फिर से कई लड़कियों ने जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ मुहिम शुरू की और इसके खिलाफ लगातार बोलना शुरू किया, लेकिन इस चीज का भी जेफरी एप्स्टीन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिल्कुल पहले की तरह ही आजादी के साथ घूमता रहा। 2018 में फिर मीडिया ने भी एप्स्टीन फाइल के ऊपर बड़ी बड़ी रिपोर्ट छापनी शुरू की, जिसकी वजह से अब अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया। इतना दबाव पड़ा कि आखिरकार 2019 में इस इंसान को गिरफ्तार कर ही लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद इस मामले पर सुनवाई होती और तमाम हकीकतों से पर्दे उठते कि कौन कौन इसमें शामिल है, क्या क्या होता था। उससे पहले ही अचानक से एक दिन जेफरी एप्स्टीन ने जेल के अंदर खुदकुशी कर ली। जेफरी एप्स्टीन की ये जो खुदकुशी थी ये भी अपने आप में आज तक एक बड़ा राज है, क्योंकि जिस जेल के अंदर उसने खुदकुशी की थी वो सबसे महफूज जेल समझी जाती है और जिस वक्त उसने खुदकुशी की थी उस वक्त न जाने क्यों सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए गए थे और तो और वहां पर ड्यूटी के लिए जो गार्ड्स मौजूद थे वो भी उस वक्त सो गए थे। ये सारी ही चीजें सवालिया निशान खड़े कर रही थी। इसीलिए अगले ही दिन से अमेरिका की सड़कों पर चलने वाले लोग क्लियरली ये कह रहे थे कि ये कोई खुदकुशी नहीं है बल्कि ये मर्डर है। जानबूझकर जेफरी एप्स्टीन की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया गया है ताकि जो दुनिया के बड़े बड़े लोगों के राज हैं वो भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएं। एप्स्टीन तो मर चुका था मगर उसके बाद अब सब लोगों की नजर उसकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड पर थी जिसका नाम था ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ, ये वही लेडी थी कि जो इस पूरे काले कारनामे में एप्स्टीन की सबसे बड़ी साथी थी। एप्स्टीन के लिए अलग अलग इलाकों से लड़कियों को ढूंढना, उनको फंसाना और फिर उनको इस काम के लिए ट्रेन करना, ये सारी जिम्मेदारियां यही निभाती थी। सबसे पहले 2020 में इस लेडी को गिरफ्तार किया गया। पूरी कार्रवाई चली, अलग अलग लड़कियों के बयाना दर्ज किए गए और फिर 2022 आते आते इस लेडी को पूरे 20 साल की सजा सुनाई गई। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो गई बल्कि इसके बाद अमेरिका में फिर लगातार ये मांगे उठने लगी कि जितने भी लोग एप्स्टीन से जुड़े हुए थे, उसके क्लोज थे, उसके फ्रेंड थे, तमाम लोगों का खुलासा किया जाए। मतलब इस पूरे केस से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको पब्लिक किया जाए और पूरी दुनिया जाने कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। लंबे वक्त तक तो इस पूरे मामले को लेकर टाल मटोल होता रहा, लेकिन आखिरकार नवंबर 2025 में एक कानून पास किया गया और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस पूरे मामले की जो सच्चाई थी, इस पूरे केस की जो हकीकत थी वो दुनिया के सामने आना शुरू हो गई। साथियों, आप लोगों को अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तो जरूर याद होंगे। उनके बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने एप्स्टीन के इस आइलैंड को लगभग 25 बार विजिट किया था। ट्रम्प के बारे में भी दावा किया जाता है कि वो 90 के दशक में जेफरी एप्स्टीन के क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे और उनके पड़ोसी हुआ करते थे, मगर जैसा कि खुद ट्रम्प लगातार ये कहते आए हैं कि उनकी ये दोस्ती उसी वक्त टूट गई थी और फिर ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। उसके बाद ट्रम्प के मुताबिक उन्होंने इस इंसान से कभी कोई ताल्लुक नहीं रखा है। लेकिन अब अगर बात की जाए इस केस से जुड़े हुए उन डॉक्यूमेंट्स की कि जो हाल ही के दिनों में अमेरिका की तरफ से बारी बारी से रिलीज किए जा रहे हैं, तो इनके रिलीज होने के बाद दुनिया के जो चंद मशहूर लोग सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आए हैं उनमें से एक नाम है माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स का। जी हाँ, वही कि जो आजकल दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। वैसे तो कुछ दिन पहले ही जब अमेरिका की तरफ से इस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की पहली खेप रिलीज की गई थी, तब ही बिल गेट्स के बहुत सारे ऐसे फोटोज वायरल होना शुरू हो गए थे कि जिनमें उनको लड़कियों के साथ देखा जा सकता था। और अब जब दोबारा से अमेरिका की तरफ से एप्स्टीन केस से रिलेटेड और भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए हैं, तो यहाँ पर भी न सिर्फ कई बार बिल गेट्स का नाम मौजूद है बल्कि उनके नाम के साथ बहुत सारा मटेरियल भी मौजूद है। खास तौर से इस बार एक ईमेल काफी चर्चाओं में है कि जिसमें एप्स्टीन की तरफ से लिखा गया था कि बिल गेट्स ने रशियन लड़कियों के साथ रिश्ते बनाए थे, जिसकी वजह से फिर बिल गेट्स को एसटीडी मतलब जो कि एक बीमारी है वो भी हो गई थी। ईमेल के मुताबिक बिल गेट्स की तरफ से न सिर्फ अपने प्राइवेट पार्ट की फोटो एप्स्टीन को भेजी गई थी बल्कि एप्स्टीन से इस पूरे मामले को छिपाने की भी गुजारिश की गई थी और अपनी बीवी को देने के लिए दवा का नाम भी पूछा गया था ताकि बीवी को इस बीमारी के बारे में कुछ पता ना चल सके। हालांकि अब कि जब ये ईमेल काफी चर्चाओं में है तो बिल गेट्स की टीम की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और इन तमाम चीजों को पूरी तरीके से झूठा करार दिया गया है।
टीम का कहना है कि क्योंकि एप्स्टीन बिल गेट्स से काफी फ्रस्ट्रेटेड था और इसी फ्रस्ट्रेशन में ही उसने ये तमाम अनाप शनाप बातें लिखी होंगी। अगले नाम की बात करें तो वो खुद अमेरिका के ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इन दोनों का दोस्ताना तो काफी पुराना है। यही वजह है कि इस केस से रिलेटेड पहले भी जितनी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिलीज होते रहे हैं तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम वक्त वक्त पर सामने आता रहा है। इस बार जो नई खेप रिलीज हुई है इसमें भी ट्रंप से जुड़ी हुई लगभग 5000 के करीब फाइल्स बताई जा रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इन्वेस्टिगेशन वाली फाइलों की, जिसमें पीड़ित लड़कियों की तरफ से ट्रंप के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अभी तक इन अपराधों के, इन दावों के कोई भी सबूत मौजूद नहीं है और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमेशा की तरह इन तमाम मामलों को झूठा करार दिया है। आगे बढ़े तो इस लिस्ट में अगला नाम एलोन मस्क का नजर आता है। जी हाँ, वही एलोन मस्क के जो अभी कुछ वक्त पहले तक एप्स्टीन फाइल को रिलीज करने की डिमांड करने वाले लोगों में सोशल मीडिया के ऊपर सबसे आगे थे। नए रिलीज होने वाले डॉक्यूमेंट्स ये दावा करते हैं कि 2012 से 2014 के बीच एलोन मस्क और एप्स्टीन के बीच कई बार बातचीत हुई थी। एलोन मस्क की तरफ से एप्स्टीन के आइलैंड पर जाने की इच्छा भी जताई गई थी। इवन एलोन मस्क की तरफ से पार्टी की डेट भी पूछी गई थी। हालांकि एलोन मस्क आइलैंड पर वाकई कभी गए भी थे या नहीं गए थे, इस बात को लेकर अभी तक कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। अब खुद एलोन मस्क की तरफ से भी इस पूरे मामले पर जवाब आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी एप्स्टीन के साथ बहुत कम ही बातचीत रही है और मैंने उसके आइलैंड पर जाने की दावत को भी कई बार ठुकराया था। साथियों, एप्स्टीन से जुड़े हुए ये डॉक्यूमेंट्स जो लगातार रिलीज हो रहे हैं, इनमें आने वाले मशहूर और असरदार लोगों के नामों की ये लिस्ट काफी लंबी है, इतनी लंबी कि जिसको शायद किसी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया भी नहीं जा सकता है। मगर हाँ, यहाँ पर आप लोगों के लिए ये समझना भी जरूरी है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ये जो बार बार आप नए नए लोगों के नाम सुन रहे हैं कि फलां का नाम भी एप्स्टीन फाइल के अंदर है, फलां का नाम भी एप्स्टीन फाइल में आ गया है, तो इनको देखकर इसका मतलब ये हरगिज भी ना निकालें कि जिस भी बंदे का नाम इन फाइल्स, इन डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है वो उन तमाम चीजों में इन्वॉल्व है, वो उन तमाम चीजों में शामिल है कि जो एप्स्टीन की तरफ से की जाती थी। बल्कि मामला ये है कि अगर एप्स्टीन ने अपनी जिंदगी में किसी से बातचीत करते हुए ईमेल में किसी दूसरे इंसान का भी जिक्र किया है, तो वो जो इंसान है कि जिसका ईमेल में जिक्र हुआ है उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इसका नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है। जो बात टेक्निकली सही भी है क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट्स में तो है, लेकिन उस सेंस में बिल्कुल भी सही नहीं है कि जिस सेंस में लोग आमतौर पर समझ रहे हैं। अब अगर इंडिया पर आए तो इंडिया के अंदर भी मीडिया और सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से अचानक से इस एप्स्टीन फाइल की उस वक्त ज्यादा चर्चाएं होने लगी कि जब नए रिलीज होने वाले डॉक्यूमेंट्स में एक ईमेल नजर आया। इस ईमेल में एप्स्टीन कतर के किसी ताकतवर इंसान से बातचीत कर रहा है और इसी बातचीत में उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है। एप्स्टीन कतर के उस ताकतवर इंसान से बातचीत करते हुए कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी सलाह ली थी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फायदे के लिए इजराइल में नाचा गाया था। वो दोनों मतलब के पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ हफ्तों पहले मिले भी थे और ये काम कर गया। अब जिस ईमेल में ये सब कुछ कहा जा रहा है उसकी तारीख 6 जुलाई 2017 की है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4 जुलाई 2017 से लेकर 6 जुलाई 2017 तक इजराइल में थे। ये किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इजराइल का पहला दौरा था और इससे कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। अब जैसे ही इस ईमेल पर चर्चाएं शुरू हुई और खासतौर से इंडिया की जो अपोजिशन पार्टी है मतलब के कांग्रेस, उसने इस ईमेल को लेकर सवाल पूछने शुरू किए, तो फौरन ही इंडिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर जवाब दिया गया और जवाब क्या दिया वो आप लोग खुद देख सकते हैं। हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि इस ईमेल के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 2017 में जो इजराइल का दौरा हुआ था उसको छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें मेंशन की गई हैं वो एक अपराधी की तरफ से की गई बकवास के सिवा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जेफरी एप्स्टीन और उसके बदनाम आइलैंड से जुड़ी हुई पूरी कहानी कि जिसको हमने आपके सामने बहुत ही शॉर्ट में रखने की कोशिश की है। बाकी ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है क्योंकि आगे जैसे जैसे इस केस से जुड़े हुए नए नए डॉक्यूमेंट्स
ریلیز ہوتے جائیں گے، نہ جانے کون کون سے بڑے بڑے خلاصے ہوتے جائیں گے۔ باقی اس پورے معاملے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں